नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am, as usual, your host Dr. Jamil Rathor. And in this religious Quranic program of ARY Network, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the discipline and format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 86 to 89 of Surah An-Naml of the 20th part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صدق الله العظيم. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Alam yaghaw. Alam yaghaw. أنا جعلنا الليل جعلنا الليل
लियस्कुनु फीहि वन्नहार मुबसिरा इन्न फी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फफ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन वतगल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Dear viewers, now we come to the final and last segment of our program, in which we give you this lesson in several types. First, we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And after this, we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation. And in the end, we also give you brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us for better and fluent recitation as well as understanding of Holy Quran. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ
Roman, ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. इन उर्दू, क्या उन्होंने गौर न किया कि हमने बनाया है रात को इसलिए ताकि वो उसमें आराम करें और बनाया है दिन को बीना। बेशक इसमें हमारी कुदरत की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। In English, have they not seen that we have made the night that they might rest therein, and the day sight-giving? Undoubtedly, in them necessarily there are signs for those who believe. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. इन उर्दू, और जिस दिन फूंका जाएगा सूर तो घबरा जाएगा हर कोई जो आसमानों में है और जो जमीन में है, मगर जिन्हें अल्लाह ने चाहा वो नहीं घबराएंगे और सब हाजिर होंगे उसकी बारगाह में आजिज़ी करते हुए. In English, and the day when the trumpet shall be blown, then all those who are in heavens and those in the earth shall be unnerved, but he whom Allah wills, and all will be present before him, showing humility. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير خبير بما تفعلون. In Roman, وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. इन उर्दू, और तुम जब उस रोज पहाड़ों को देखोगे तो गुमान करोगे कि ये ठहरे हुए हैं, हालांकि वो चल रहे होंगे बादल किसी चाल. ये कारीगरी है अल्लाह की जिसने अपनी हिकमत से मजबूत बनाया हर चीज को. बेशक वो खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो. In English, and when you shall see the mountains, you shall think that they are fixed, but they will be passing like the passing of the clouds. This is the work of Allah,
who made everything with wisdom. Undoubtedly, He is aware of your works. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. इन उर्दू, जो शख्स नेक अमल लेकर आएगा तो उसे कहीं बेहतर अजर मिलेगा उस नेक अमल से, और ये नेक बंदे उस दिन की घबराहट से महफूज होंगे. In English, whoever brings good, for him there is better reward than that, and they are secure that day from bewilderment. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा. इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा फिर इंसान की अक्ल से, उसकी विजडम से मुखातिब है और तरह तरह की निशानियाँ कुरान में बयान फरमा रहा है. हम देखते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान का जिक्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चाँद का जिक्र किया. अब फिर इन आयात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिन और रात का जिक्र कर रहा है कि ए इंसान, ये दिन और रात की बदली है, इसमें तेरे लिए निशानियाँ हैं. इसलिए कि अगर दो खुदा होते, एक खुदा कहता कि दिन को 24 घंटे का बनाऊंगा, दूसरा खुदा कहता कि नहीं, रात को मैं 36 घंटे का बनाऊंगा, तो यकीनी तौर पर नज़्म कायनात बिगड़ जाता, नज़्म कायनात उलट पलट जाता, दुनिया तबाह बर्बाद होकर रह जाती. लेकिन रात अपना दौरानिया पूरा करती है, दिन अपना दौरानिया पूरा करता है, और हमेशा से ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहेगा. ये इस बात की दलील है कि कल भी खुदा वाहिद था, आज भी खुदा वाहिद है, और क़यामत में भी वही वाहिद खुदा का अज़मत होगी, जबरूत होगी, जाहो जलाल होगा, उसकी शान व शौकत होगी. चुनांचे दिन और रात की बदली में हमें बताया जा रहा है कि यकीनी तौर पर तुम्हारे लिए इसमें निशानियां हैं, तुम गौर करो. एक खातून से किसी ने कहा कि तुमने अल्लाह को किस तरह पहचाना? उसने कहा कि मेरे चरखे से, मैं चरखा जब चलाती हूँ तो चलता है. ये इस बात की दलील है कि कायनात चल रही है तो यकीनी तौर पर इसको चलाने वाली ज़ात कोई मौजूद है. तो कहा कि फिर अल्लाह की वहदानियत को किसने जाना? उसने कहा, बूढ़ी खातून ने, कि जब मैं चरखा अकेले चलाती हूँ सही चलता है, दो आदमी चलाएंगे कभी रफ्तार सुस्त होगी, कभी ज़्यादा होगी, नतीजतन एक हिस्से का कपड़ा सही बनेगा, दूसरे हिस्से का ख़राब हो जाएगा. मैं अकेले चलाती हूँ तो पूरा थान सही बनता है. ये इस बात की दलील है, कायनात बता रही है कि जब एक ही तरह चल रही है तो इसका मतलब है चलाने वाली ज़ात भी एक है, वाहिद है, क़हार है. वो मशहूर मिसल है कि अरब के बद्दू से किसी ने पूछा कि तुमने अल्लाह को किस तरह जाना? तो उसने कहा कि जनाब, जब मैं सहरा में जाता हूँ, मेंगनियाँ देखता हूँ तो बता देता हूँ यहाँ से कौन सा जानवर गुजरा है, फीसिस देखता हूँ तो बता देता हूँ ये ऊँट का है, घोड़े का है, ये किसका टॉयलेट है, मैं बता दिया करता हूँ. और मैं फिर देख लिया करता हूँ कि गुजरने वाले के निशानात इंसान के हैं या जानवर हैं. तो जब मट्टी पर पड़ने वाले कदमों के निशान और मेंगनियाँ जाने वाले का पता बताती है तो ये पूरी कायनात भी अपने चलाने वाले का पता बताती है. तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की अजीम निशानियाँ है. फिर रब्बे कायनात फरमाता है कि जब इस दुनिया को हम ख़त्म करेंगे, इसमें हम सूर फूंकेंगे, और यकीनी तौर पर इसके मुताल्लिक़ अहादीस भी है, कुरान में भी है कि जब क़यामत कायम होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजेगा, वो सूर फूंकेगा, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सब बेनूर हो जाएंगे. ये कायनात का मादा जो वर्किंग स्टेट में है,
ये आनन फानन ख़त्म होकर रह जाएगा, और जिस तरह दुनिया बनने से पहले ये एक गर्म गैसेस की सूरत में थी, शायद ये उसी तरह हमारी कायनात कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला एक और दुनिया जिसे मैदान और जिसे मैदान हश्र या क़यामत कहा जाता है वो बर्पा करेगा, और वहाँ पर सारे इंसान जो क़यामत तक इब्तिदाई आफरीनश से इस दुनिया में आ चुके हैं उन सबको जमा करके आमाल की जवाबदही और अल्लाह तआला के सामने पेश किया जाएगा। फिर इन्हीं आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह ने फिर अपनी आज़मत और तौहीद की दलील दी कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम बुलंद बाला पहाड़ों को देखो, हमने ज़मीन पर कैसे रख दिए हैं, और तुम चलने वाले आसमानों को देखो, बादलों को देखो। बाज़ औक़ात तुम देखते हो कि बादल बिल्कुल स्टेशनरी हालत में है, रुके हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो फिर भी चल रहे होते हैं, और जहाँ पर अल्लाह चाहता है वहाँ पर बरस जाया करते हैं। तो ये मेरे रब, मेरे खुदा की वो तारीफ़ात और वो तमासील और वो दलाइल हैं जो कुरान की इन आयात में तसलसल और तवातुर के साथ हमें मिलती है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें रब्बे कायनात की वहदानियत पर यकीन के साथ ज़िंदगी भर रासिक कदमी के साथ अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए, और हर किस्म की कमी कजी से कजरवी से और वक्तन फ़वक्तन जो बातिल की आंधियाँ चलती हैं, मुस्तशरिकीन के एतराज़ात होते हैं, साइंसी डिवाइसेस आती है जिनके ज़रिए ईमान मुतज़लज़ल किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बचकर हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुका